Hello and welcome everyone in our new class. In this class, we are going to learn about factors affecting on chemical shift. So there are different factors which are affecting on chemical shift, and what are those factors? For the explanation of these phenomena, please do watch my previous lecture of chemical shift, because whenever you are learning about chemical shift factors, at that time you must have to know what is meant by chemical shift actually. Then after, see, whenever you are learning about the factors about the changing chemical shift, that very important one factor is there, and which is known to everyone, and that one is nothing but inductive effect. That one is nothing but an inductive effect. So whenever you have inductive effect, at that time, as everybody knows very well, for the explanation of this factor, simply, inductive effect is the effect which is takes place, or which can be affected onto the your compounds who have number of protons. And now whatever this chemical shift value is there, this chemical shift value is uh, changing about your inductive effect. For example, for the explanation of this purpose, let me just share with you two structures on whiteboard, and whatever these two structures are there, which I taught you already, that is simply, जब कभी भी हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट हमें देना है, at that time we are explaining this effect by using simply electronegative element which is attached with the carbon atoms, and to that carbon atoms protons are there. When these your electronegative atoms are there, how many electronegative atoms are there which are for our um, application? That is nothing but, as everybody knows very well, in our periodic table there are five halogens, but astatine, whatever half life is there, that is very lesser one. That is why we are not taking into the consideration, or we can't learn any property about astatine, which is nothing but halogen, which is nothing but one of the halogen. Now when you have these halogens, at that time there are the four halogens which are very famous one, whose first one number is fluorine, then next is chlorine, then bromine, and the last one, wait, I draw it again, fluorine, 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 bromine, and the iodine. So as everybody knows very well, the notation itself it indicates, and everybody knows very well, the electronegativity of our fluorine is very high, and that is why when you have this electronegativity of your fluorine, which is very higher one, which is very higher one, and now once you got clear with this fluorine, then after chlorine, then after bromine, and then after iodine. So whatever there, suppose for example, to every halogen, if you are trying to connect, or if you are trying to join, for example CH3F, for example फ्लोरीन की जगह क्लोरीन भी आप ले सकते हो, या फिर आप इसकी जगह ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो. सो वट एवर दिस यूर, आयोडीन भी ले सकते हैं आप इनकी जगह. तो क्या इफेक्ट होगा आपके केमिकल शिफ्ट पे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो कुछ भी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर causing your chemical shift towards the de-shielding, what do I mean by towards de-shielding? Towards de-shielding means electronegative element like fluorine, chlorine, bromine, iodine. Also, there are some another electronegative elements like nitrogen, oxygen, chlorine, etc. These groups are also can withdraw the density from your fluorines. Means if they are means, ये fluorine जब connected रहता है इस carbon को, at that time, let me just clear the slide. हाँ, तो अब ये जो कुछ भी आपका फ्लोरीन कनेक्टेड है, अब ये जो कुछ भी आपका कार्बन है, इसको कनेक्टेड फ्लोरीन है, इसको कनेक्टेड क्लोरीन है, समझ लीजिए. अब ये जो कुछ भी
आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ यहाँ पर। अब ये जो कुछ भी आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, अब मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुल करेगा खुद की तरफ। फिर अगर इसकी तरफ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुल करेगा, इसकी तरफ पुल करेगा, मतलब इन प्रोटॉन्स पर की जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। बट एज यू कंपेयर फॉर योर क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है एज कंपेयर टू दिस फ्लोरीन, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड फिर वो अफेक्ट करेगा आपकी केमिकल शिफ्ट पे। अब जब ये सॉरी, जब ये अफेक्ट करेगा आपके केमिकल शिफ्ट पे, तब क्या होगा, ये कंपेरेटिवली इस फ्लोरीन से क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज वाई ये थोड़ी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। इसीलिए अब इन पर ये जो कुछ भी, मतलब कि अब ये जो कुछ भी आपके क्या बोल सकते हैं हम, एलिमेंट्स हैं, आई मीन टू से हैलोजेंस हैं, इनके लिए जो कुछ भी आपके डेल्टा वैल्यूज होंगे फॉर योर फ्लोरीन, इट कैन बी ज्यादा से ज्यादा, अगर से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ खींचता है, खुद की तरफ खींचता है, मतलब इन प्रोटॉन्स को शील्ड कर पाएगा क्या, आप शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। अगर से शील्डिंग इफेक्ट कम है, मतलब उसको जो कुछ भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो कुछ भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, वो कितनी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली वो ज्यादा देनी पड़ेगी। एंड दैट इज वाई फ्लोरीन की जो कुछ भी डेल्टा वैल्यू होगी वो अराउंड 4.26 आती है। देन आफ्टर यू कैन लर्न अबाउट द क्लोरीन, इट कैन बी टुवर्ड्स 3.0। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम पुल होगी इसकी तरफ, तो उस पर मतलब इन यहाँ पर जो कुछ भी ये प्रोटॉन है, इनकी जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो हाई होगी। एंड जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको लोगों को बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर जो कुछ भी प्रोटॉन्स होते हैं उनका एनएमआर में एज विथ रेफरेंस टू द टीएमएस, उनकी जो कुछ भी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है वो अपर फील्ड की तरफ या फिर शील्डिंग की तरफ होते हैं। एंड दैट इज व्हाई इफ यू लुक टुवर्ड्स सिंपली द फ्लोरीन, then it will have firstly fluorine, then chlorine, then bromine, and lastly the iodine. So सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी होगी, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। मतलब सबसे अपर फील्ड में या फिर शील्डेड रीजन में कौन सा पिक आएगा, तो आयोडीन का पिक आएगा, एंड दैट विल बी अराउंड 2.16, दिस विल बी अराउंड 2.82, this will be around 3 point something, that is nothing but 3 point something nahi 3 ही, and this is about 4.26. I think everybody must be clear with the first parameter or first factor, which is about inductive effect. Now again let me continue with the point which is related with the inductive effect. अब देखिए, ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के वजह से जो कुछ भी शील्डिंग डी शील्डिंग में इफेक्ट होता है वो हो गया। बट अब बात आती है कि अगर से आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन तो हमने सीख लिया है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को डायरेक्टली अटैच्ड अगर से आपका प्रोटॉन होता है, तो वो ये प्रोटॉन का पीक भी बहुत ही डी शील्डेड रीजन में होगा। और आप लोगों को एक बात पता होगी कि अल्डिहाइडिक जो प्रोटॉन होता है, कौन सा प्रोटॉन बोल रही हूँ, ये अल्डिहाइडिक प्रोटॉन 9 से 10 की रेंज में, डेल्टा वैल्यू 9 से 10 की रेंज में मिलती है आपको। मतलब अगर से वो पूछे अल्डिहाइडिक प्रोटॉन की शील्डिंग सॉरी केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होगी, तो आप कौन सी रेंज चुनोगे, 9 to 10, depending on electron withdrawing and donating groups which are attached to that aldehydic group. Okay, now whenever you have inductive effect, again at one point I want to tell you, and that is for example CH3CH, let me clear the slide firstly, CH3CH2C F, then CH3CH2 and Cl. So see,
when you have this fluorine and when you have this chlorine at that time, as everybody knows very well, जैसे ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर दूर जाते हैं, मतलब कि मैं यहाँ पे नोट करती हूँ दिस कार्बन एज ए प्रोटॉन्स, दिस प्रोटॉन्स एज ए एंड दिस प्रोटॉन्स एज बी, दिस प्रोटॉन्स एज ए एंड दिस प्रोटॉन्स एज बी, एंड एज एवरीबडी नोज वेरी वेल, पहले प्रोटॉन के लिए जितने भी उसका इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो ज्यादा होता है, दूसरे कार्बन की तरफ से थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट कम 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 होता है, इसलिए इन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा आपके इन जो कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उनका कम कम इफेक्ट होगा आपके जो कुछ भी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज है उन पर। अब इसके बाद में बात आती है वॉन्डरवॉल्स इफेक्ट या ऑन डीशिल्डिंग। एज वॉन्डरवॉल्स इफेक्ट मतलब क्या, जैसे कि मैंने कल ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया था ये चीज, व्हाट इज दैट इज नथिंग बट विच इज रिलेटेड विद द simply protons which are about your hydrogen bonding, so they can be coming under the de-shielded region. And then after, next effect is known as anisotropic effect. Next effect is known as anisotropic effect or space effect of your केमिकल बॉन्ड्स। अनिसोट्रोपिक इफेक्ट मतलब जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों को बोला था, अनिसोट्रोपिक इफेक्ट इसी को हम बोलते हैं, ये इफेक्ट किसके बारे में हमें बताता है, तो इथिलीन प्रोटॉन्स के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो एसिटिलीन के बारे में भी ये बोल सकता है, या फिर अल्कीन के बारे में भी बोल सकता है, एंड ऑल्सो इट कैन टेल्स यू इन्फो रिगार्डिंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक द बेंजीन रिंग and aniline, etc. So whatever these examples are there, these examples have their shielded and the de-shielded regions. So see, when you want to measure these your what can we say chemical shift value, so देखिए जब कभी भी आपके फॉर एग्जाम्पल बोलने के बजाय मैं स्लाइड ही लोड करती हूँ जिसके हेल्प से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। Let's just wait till then. I'm loading the slide. Yes, factors affecting में जैसे मैंने आप लोगों को अभी भी बोला था, ट्रोपी ऑफ पाई सिस्टम्स होती है, तो ये मैग्नेटिक अनिसोट्रोपी यही मैं बोलना चाह रही हूँ आपको, और ये बातें मैंने अभी अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बोली थी, जैसे कि वैसी यहाँ पर है, ये आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद में अब बात आती है केमिकल शिफ्ट के, ये जो कुछ भी केमिकल शिफ्ट है इन पर जो कुछ भी अनिसोट्रोपिक इफेक्ट है, ये जो अनिसोट्रोपिक इफेक्ट है, ये अनिसोट्रोपिक इफेक्ट कैसे एक्ट होता है या फिर कैसे टेक्स प्लेस होता है। तो ये जो कुछ भी अनिसोट्रोपिक इफेक्ट होता है, इट इज टेक्स प्लेस in the type of compounds whichever that compounds are there, that are like benzene, alkene, then wait, I'm loading this slide. Firstly let me just load the slide, then I'll explain. हाँ, सो देखिए मैग्नेटिक अनिसोट्रोपी ऑफ पाई सिस्टम मतलब क्या, अनिसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जो अनिसोट्रोपिक वर्ड आता है उस वर्ड का मीनिंग पहले तो समझ लेंगे हम, और उसके बाद में हम जाएंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो अनिसोट्रोपिक मतलब नॉन यूनिफॉर्म। सो ये जो कुछ भी नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जो कुछ भी मैग्नेटिक अनिसोट्रोपी होती है, वो मैग्नेटिक अनिसोट्रोपी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। मतलब क्या, मतलब कि ये जो कुछ भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हो आपके इन अल्कीन के लिए, या बेसिकली अल्कीन बोलने की बजाय मैं बोलूंगी बेंजीन या फिर अल्कीन, बेंजीन या फिर अल्काइन के बारे में। तो देखिए ये जो कुछ भी प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे कि मैंने
फिर से आपको बोल रही हूँ, इसके पहले वाले क्लास में आपको मैंने बोला था कि ये जो कुछ भी अल्काइन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर कार्बोनिल के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें ये जो कुछ भी इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट हम देख सकते हैं। तो इसमें कैसे देख सकते हैं हम, मतलब इसमें शील्डिंग भी हो सकती है और डीशील्डिंग भी हो सकती है। फिर ये हम कैसे बता सकते हैं? तो सीधे सीधे इसके लिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाती हूँ, तो उसकी हेल्प से आप समझ जाओगे। बट अब जो मैं अभी अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बोल रही थी कि वंडरवॉल्स जो कुछ भी बॉन्डिंग होती है, वंडरवॉल की बॉन्डिंग उस पर कैसे इफेक्ट होता है आपके केमिकल शिफ्ट पे। तो देखिए, जब कभी भी आप वंडरवॉल्स इफेक्ट बोलते हो, मतलब कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस होती है, एंड वहां पर जो कुछ भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस होगी, वहां पर हाइड्रोजन वंडरवॉल्स इफेक्ट के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की में जो कुछ भी आपके ये बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स पर कैसे केमिकल शिफ्ट वैल्यू अफेक्ट करेगी, मतलब कि वो शील्डेड रीजन में जाएंगे या फिर डी शील्डेड रीजन में जाएंगे। तो उसका आंसर है प्रोटॉन विल गो आफ्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आफ्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटॉन कैन गो इन shielded region, in a shielded region, which you can observe here. Then after this slide, I'm gonna to use one slide to explain you people about benzene and अल्काइन। सो अब उसमें से एक एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम को आ भी सकता है, नहीं भी सकता है, मतलब एग्जाम को ऐसे बोल नहीं सकती हूँ, बट फिजिकल में उसका एज सच आप लोगों को नेक्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए, लेट मी जस्ट लोड द स्लाइड फर्स्टली। हाँ देखिए, अब देखिए ऐसे, अगर से आपने अल्काइन मॉलिक्यूल आपका ऐसा रखा, तो उसकी जो कुछ भी खुद का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, या फिर उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इंड्यूस होती है, एंड देन आफ्टर आप लोग अप्लाई करते हो उस पर मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज वाई ये दोनों के दोनों इफेक्ट्स जो होते हैं, वो इफेक्ट्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंड दैट इज वाई आप लोगों के प्रोटॉन को, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और आपकी इनकी प्रोड्यूस हुए वाली मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के पोल सेम सेम होते हैं, दोनों को पोल्स जब सेम सेम होते हैं, तब क्या होता है कि वो एक दूसरे मतलब जो भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपको लगानी होगी, वो ज्यादा लगानी होगी, क्योंकि रेजोनेंस नहीं होता है वहां पर जल्दी से, एंड ये रेजोनेंस जल्दी नहीं हो पाता है, मतलब वो शील्डिंग की तरफ जाएंगे प्रोटॉन, या फिर डी शील्डिंग की तरफ जाएंगे वो प्रोटॉन्स, शील्डिंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पर पैरेलल होता है आपके जो कुछ भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्रिएट हुए वाले मैग्नेटिक फील्ड की क्या बोलते हैं हम, दिशा, इसके वजह से ज्यादा शील्डेड रीजन की तरफ आपके प्रोटॉन्स आपको पिक देते हैं। देन आफ्टर these your next point from our syllabus, which is related with the temperature solvent। मतलब क्या, आप जब कभी भी सॉल्वेंट यूज करोगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये रिएक्शन मतलब मुझे बोलना है कि ये एनएमआर स्पेक्ट्रा लोगे तब कैसे इफेक्ट होगा। जनरली कम टेम्परेचर पे जो कुछ भी आपके स्पेक्ट्राज होंगे वो अच्छे से आप रिकॉर्ड कर पाओगे, और जनरली हम रूम टेम्परेचर पर ही एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं। एंड सॉल्वेंट के बारे में तो मैंने फुल एक क्लास लेके आपको पढ़ाया था, तो आप वो क्लास जाके देख लीजिए। एंड सो सी सॉल्वेंट्स कैसे होने चाहिए, सॉल्वेंट should be proton free. Solvent should be proton free. Why should be solvent which is proton free? Because whenever you have solvent, and if you have in solvent presence of proton, then उस solvent के ही proton interfere करेंगे आपके NMR spectra में। And this is all about your factors affecting on chemical shift. Thank you so much everyone. In next class we will learn about n+1 rule, then the coupling constant and the splitting pattern, and also n+1 rule can be known as spin coupling and how it works. Then after
whatever the signals are there, that signals intensity ratio, how it takes place, these all things we will learn in our next class. Thank you so much, everyone.